Hello guys, welcome to our continuation of the lecture. We were discussed already about the notes writing, how to prepare notes, how to make oral pathology a easier subject for passing, how to make a strategy that makes you help remember each and every content of oral pathology. Because not only from the theory exam point of view, you are testing for clinical person purpose also. So today's topic we will discuss about odontogenic cyst. This is the most important question. First of all, I will make you help that how they ask the question. Ask the question this way before any question of cyst or tumor. They will ask their classification first. So it's a must thing. It's mandatory to remember all the classification. Okay, because what happens when a question is asked that classify cyst and describe Dentigerous Cyst in detail. So this question is of 7 marks. What happens is 2 or 3 marks will be of this classification and 4 or 5 marks will be of this Dentigerous Cyst. At this point, you should know that mere writing Dentigerous Cyst will not help you. So you have to recall what is that importance of classification. You should know the classification. Okay. Now we will start with our cyst portion. First of all, in today's lecture, what we'll be including is definition of cyst. In your practical exam, what they do is they will ask you definitions. Tumor, cyst, OKC, dentigerous cyst, ameloblastoma. All the definitions what you encounter here, it can be asked in the practical exam. Okay. For example, in your practical exam, they ask you leukoplakia. Describe leukoplakia. What you'll start? You'll write with the definition first or speak the definition first. Okay, that marks your knowledge for this question. Okay, the first of all, we will go with the definition, then its classification, cyst classification. Then we will describe OKC. Okay, then dentigerous cyst, difference between both. Okay, for this today's lecture, we will be discussing all these points. In the previous slide or in the previous lecture, I already told you that out of dentigerous cyst, out of OKC or COC, any one will be asked. So it makes that your 7 marks is secure. Okay. Now definition of odontogenic cyst. What is this definition? Okay. So this depends upon various addition. So whenever you speak any definition, you always write according to this
Today internet is having issues, so we are having a glitch in these lectures. So first of all, you will write the definition, but without its reference, you will tell that it is according to Schaeffer's 8th edition. Sometimes if you are not knowing the source and if you are done from the internet, you can write that according to the internet source. Okay, but various definitions will be there for different authors, different books, etc. So now we come to this definition. What's the definition? It's a cavity. Okay, it's a pathological cavity. एक जगह है जो पैथोलॉजी के कारण बनी है एंड इट इज नॉट और लाइंड. ओके, कभी कभार एपिथेलियम से लाइन भी होगी, कभी कभार एपिथेलियम की लाइनिंग नहीं होगी. और कंटेंट क्या होगा? फ्लूइड, सेमीसॉलिड और गैस. तो यू हैव टू स्प्लिट दिस डेफिनेशन. व्हाट इज दिस? इट्स ए कैविटी. व्हाट टाइप ऑफ कैविटी? पैथोलॉजिकल, not normal. Okay, now what about the lining? It may or may not epithelium and its contents fluid, semi-solid or gaseous state. तो this is the definition. Okay, तीन चीज है. एक तो वो एक पैथोलॉजिकल कैविटी है, नॉर्मल कैविटी नहीं है. उसमें एपिथेलियम की लाइनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और कंटेंट उसका फ्लूइड, सेमीसॉलिड और गैसियस स्टेट हो सकता है. ठीक है. अब आया क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा? पहले तो इंट्राओसियस जो बोन के अंदर होगा वो. ठीक है. एक्स्ट्राओसियस जो बोन के बाहर होगा वो. ठीक है. तीसरा है इन्फ्लेमेटरी. अब बोन के अंदर क्या क्या होगा? इनसाइड द बोन वी फाइंड दैट इट इज ओकेसी. मैंडिबल के अंदर ये वी कैन फाइंड दिस cyst. Okay. Other pattern of odontogenic keratocyst is orthokeratinized. Okay. In this, we find that instead of parakeratinization, there is orthokeratinization. Afterwards, we find that is Dentigerous Cyst, Lateral Periodontal Cyst or Glandular Odontogenic Cyst. All these are intra-osseous. Extra-osseous cyst we find eruption cyst. ठीक है. कब पाई जाती है? जब टूथ इरप्ट होता है तो टूथ के ऊपर, गम्स के ऊपर एक सिस्ट बन जाती है, नीचे यहाँ टूथ होगा. ठीक है. तो ऐसी सिस्ट को बोलेंगे इरप्शन सिस्ट. Botuloid odontogenic cyst, gingival cyst of newborn as well as adult. All these are extra-osseous. In case of inflammatory, we have apical periodontal cyst. Okay, due to constant trauma in the periapical region, this fluid accumulates in a cavity. We might find apical periodontal cyst, residual cyst, periodontal cyst, then buccal bifurcation cyst. All these are inflammatory. So in short, we have odontogenic cyst classification: extraosseous, intraosseous and inflammatory. Now sometimes it happens that you cannot recall all these names in this classification, so you can write one or two if you are having lack of time or shortage of time. It is not that it is mandatory for you to write the complete all the cyst coverage, but what I mean is if you have forgotten, you can write one or two at least. Okay, in this way you can save your time and you can score good marks. Okay,
इन केस ऑफ नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है, ओडोंटोमिक्स दांत के साथ जो लेना देना रखता है, ठीक है। Now all these are not related with teeth but some other structures. So we find intra-osseous, it is nasopalatine duct cyst. Then in the palate we find median palatal cyst, globulomaxillary cyst, and median mandibular cyst. In case of extra-osseous, palatal cyst of newborn, nasolabial cyst, then thyroglossal duct cyst, oral lymphoepithelium, epidermal and dermoid cyst. In case of inflammatory, we have salivary cyst, antral, traumatic, aneurysmal bone cyst. In case of infectious, we have paracystic cyst. Okay. So now, till now, what we have revised is, first of all, definition of cyst. It's a pathological cavity lined or not lined by epithelium, and it contains solid, semi-solid or fluid or gas type material. ओके, ये उसका डेफिनेशन हुआ। बाद में क्लासिफिकेशन, तो ओडोंटोजेनिक और नॉन ओडोंटोजेनिक, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपके नोट्स में ऐसे लिख सकते हो। तो सिस्ट, ठीक है, ये आया ओडोंटोजेनिक, ये आया नॉन ओडोंटोजेनिक। इसमें क्या आएगा, इंट्राओसियस, एक्स्ट्राओसियस और इन्फ्लेमेटरी। यहाँ भी वही इंट्राओसियस, एक्स्ट्राओसियस, इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन एक ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। एग्जाम में क्लासिफिकेशन किसी का भी आपको याद हो और कोई रिलेशन में हो तो वो लिखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक तो क्लासिफिकेशन, फिर कोई साइन हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट साइन हो जो वही रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकन प्लेनस आप लिखते हो तो आपको एक फीचर आता है विकैम स्ट्राया, ये जब भी आए तब आपको ये बॉक्स करके लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है ना वो आपको ठीक से प्रेजेंट करना है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एज फाइनल ईयर थर्ड ईयर बीडीएस एग्जाम इज कंसर्न। मैं फिर से बता रहा हूं एक ही बात, डेंटिजरस सिस्ट, ओकेसी, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, तो आपका 7 मार्क आज सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्क्राइब ओकेसीज फीचर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ईयर ऑफ 1876 इट वाज डिस्क्राइब्ड, उसकी डिस्क्रिप्शन पहले आई थी, ठीक है, 1876 में, लेकिन नाम दिया है फिलिप्सन ने 1956 में, ठीक है। अब उसकी ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो और इसका इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हो। तो ये क्या है, इट्स ए डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अभी मुझे एक बात आपको मैं बतानी है, कभी कभार क्या होता है, आपको क्लासिफिकेशन पता है कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट में ओकेसी आता है, ठीक है, इंट्राओसियस ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। तो आपका क्लासिफिकेशन भी याद हो जाएगा और आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ तो डेवलपमेंटल लिखा है, आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो, इंट्राओसियस, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट कैसी है, तो वो इंट्राओसियस है, डेवलपमेंटल है,
और ओडोंटोजेनिक उसका तो नाम ही है, ठीक है। फिर उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरी सिस्ट से अलग बनाता है, ठीक है। तो उसके ही बात हम आज करने वाले हैं। उसका एक हिस्टोपैथोलॉजिक जो फीचर है वो बहुत ही यूनिक है। और क्लिनिकल बिहेवियर ऐसा है कि वो सिस्ट को आप अगर निकाल दोगे एक बार एक्सिशन करके या इन्यूक्लिएशन करके, या मार्सुपियलाइजेशन, रिकरेंस क्यों होगी? क्योंकि सैटेलाइट सिस्ट होती है, उसकी डॉटर सिस्ट वहां पे प्रेजेंट होती है, आजू बाजू बहुत छोटे छोटे सिस्ट होती है। तो ये ऐसी सिस्ट है जो रिकरेंस का रेट ज्यादा है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। Of all the odontogenic cysts, it consists of 3 to 21%, ठीक है। ओकेसिस 3 से 21% टाइप की जो सिस्ट होती है वो होती है टोटल सिस्ट में से, ठीक है। नाउ इट अराइजेस फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ डेंटल लमाइना, ठीक है। जब टूथ बर्ड बनता है तो आपको सब स्टेजेस पता होगा, बेल स्टेज, कैप स्टेज, बर्ड स्टेज, ठीक है। बेड, कैप, एडवांस्ड, डेंटल लेमेना बढ़ा देता है, टूथ का स्ट्रक्चर एक एडप्ट हो जाता है, वो एक डेंटल लमाइना। तो डेवलपमेंट हो जाता है टूथ का, लेकिन कुछ रेमनेंट्स रह जाते हैं। तो वो रेमनेंट्स रह जाएंगे ना, तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड या कैविटी एक बन जाएगी और गैस या फ्लूइड उसमें भर जाएगा, तब जाके वो ओकेसी बनेगा। ठीक है, पॉइंट आया। इट arises फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ डेंटल lamina and which layer is of basal cell layer is affected, ठीक है। सेल जो होता है ना, जो एपिथेलियम का लेयर, वो 4 टाइप के होते हैं, स्ट्रेटम बेसल, फिर स्पाइनोसोम आता है, फिर सुपरफिशियल भी आता है, ठीक है। तो ये बेसल सेल लेयर है, वो नीचे वाला लेयर है, सबसे नीचे वाला, वहां पर अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर स्टेलेट रेटिकुलम ऑफ इनेमल ऑर्गन, ठीक है। जो डेवलपमेंट के टाइम जो इनेमल बनता होगा, उसका जो स्टेलेट रेटिकुलम होगा उसमें से भी ओकेसी बन सकता है। और बेसल सेल ऑफ ओरल म्यूकोजा है ना, वो अफेक्ट होता है, हमने आगे देखा। बेसल सेल अफेक्ट होता है और जितने भी बेसल सेल है वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं। प्रोलिफरेट होता है तो क्या होता है, उसका ग्रोथ इतना होता है सेल्स का कि वो कभी कभार एक दूसरे के बीच गैप रख देते हैं। तो ये बीच में जो खड्डा हो गया वो एक सिस्ट बन, ठीक है। तो फिर से ओकेसी का पॉइंट हम समझाते हैं। इट वाज डिस्क्राइब्ड इन 1876 और नेम्ड बाय फिलिप्सन। वो एक इंट्राओसियस है, डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट है। उसका हिस्टोपैथ भी डिफरेंस है थोड़ा अलग, और उसका रिकरेंस रेट ज्यादा है। वो 3 to 21% में पाई जाती है मुंह में। फिर कहां से? इट अराइजेस फ्रॉम रेमनेंट्स ऑफ डेंटल लैमिना, ठीक है। फिर वह सेल की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जानी, तो जहां 10 चाहिए वहां हजारों सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेल बनेंगे तो बीच में कोई जगह रहेगी नहीं, ठीक है। और इनेमल ऑर्गन का जो स्टेलेट रेटिकुलम है उसका एक पोर्शन अफेक्टेड है, ठीक है। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 to 11% इन एज। तो देखो अभी अब हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है आपको कैसे नोट्स बनानी है, तो ये यहाँ पे थोड़ा इजी दे दिया है ये चैप्टर में या ये स्लाइड में, ठीक है। आपको लिखना है पहले ओके, फिर डेफिनेशन, ठीक है। आप उसमें लिख दोगे कि इंट्राओसियस डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट विथ हाई रिकरेंस रेट। फिर आता है उसका
क्या, नेम्ड बाय, फिलिप्सन। ठीक है, फिर आएगा उसका क्या, अराइजेस फ्रॉम, तो आपको लिखना है डेंटल लमाइना, फिर बेसल सेल लेयर को अफेक्ट करता है, फिर जो स्टेलेट रेटिकुलम है होता है इनेमल ऑर्गन का, और प्रोलिफरेशन ऑफ बेसल सेल। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना वो आपको ऐसे नोट्स बना देनी है, फिर वही आप डिवाइस करना है। ठीक है, फिर आता है जेंडर। तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, अभी उसके आएंगे क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, पहला क्लिनिकल फीचर है कि फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एज। तो अब यहाँ पे सेकेंड टू थर्ड डेकेड लिखा है, आप थर्ड टू फोर्थ भी लिख सकते हो, इतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहता है तो ठीक है, वरना अगर भूल गए तो थर्ड टू फोर्थ लिख दो। ठीक है, फिर जेंडर, मेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, 1.5:1 का रेशियो में होता है। अब साइट, तो पोस्टीरियर मैंडिबल इज मोस्ट अफेक्टेड। सिस्ट कर रहे हो तो आपको दूसरा का भी पता होना चाहिए कि ये ओकेसी का पोस्टीरियर मैंडिबल है, तो डेंटिजरस सिस्ट का कहाँ होगा। डेंटिजरस सिस्ट है ना, उसके नाम में लिखा है डेंट मतलब दांत, जो टीथ इंपैक्टेड होंगे, जो सुपर न्यूमेररी होगा और अनइरप्टेड होगा, उसके साथ वो पाया जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि इंपैक्टेड टीथ कौन कौन से होते हैं। तो एक तो लोअर मोलार्स होते हैं और कैनाइन्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों टीथ के आजू बाजू हमको ये पाया जाएगा। तो कैनाइन्स तो एंटीरियर रीजन में आएगा, तो यहाँ पे ओकेसी ज्यादातर पोस्टीरियर में पाया जाता है। डेंटिजरस सिस्ट है वो आगे भी पाया जाता है, पीछे भी पाया जाता है, क्योंकि उसको तो खाली जो टीथ इंफेक्टेड है, सुपर न्यूमेररी है और अनइरप्टेड, उसमें वो डेंटिजरस सिस्ट बन जाता है। ओकेसी में क्या होता है, बेसल सेल लेयर का इतना प्रोलिफरेशन हो जाता है पोस्टीरियर मैंडिबल के रीजन में, तब जाके वहां सिस्ट बन जाती है। ठीक है, अब ओकेसी ज्यादातर केस में क्या होता है, कोई सिम्टम होता नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सिस्ट जैसे जैसे बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, बोन को एक्सपांड करता है। ठीक है, और फिर बोन एक्सपांड होगा तब जाके पेशेंट को पेन होगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगी। छोटी सिस्ट होगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा, कभी कभार हम ओपीजी लेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये तो सिस्टिक रीजन है अंदर। ठीक है, सिस्ट अगर बड़ी हो जाती है तो उसमें पेन होगा। पेन क्यों होगा, क्योंकि वो सिस्ट अपनी जगह बनाएगी, बोन को एक्सपांड करेगी, नॉर्मल वाइटल स्ट्रक्चर्स जो होंगे ओरल म्यूकोजा के और ओरल कैविटी के, उसको वो पुश करेगी, उसको वो हैरान करेगी, तब जाके हमको पेन, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। बोन एक्सपांशन हो जाएगा और स्वेलिंग नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें बोन का एक्सपांशन होता है लेकिन स्वेलिंग कम होता है, स्लो रेट से होता है। अब एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब क्या है कि ओकेसी जो भरा है फ्लूइड, जो सिस्ट है, उसके मटेरियल के अंदर से, उसकी कैविटी के अंदर से आपको कोई चीज लेना है, कोई मटेरियल लेना है। ठीक है, फिर आपको चेक करना है हिस्टोपैथ माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप देखोगे ना तो वो पाया जाएगा कि वो चीजी मटेरियल है। ठीक है, और केराटिन या स्ट्रॉ कलर का लिक्विड है। ठीक है, ऑन एस्पिरेशन वी फाइंड दैट इट इज चीजी मटेरियल और केराटिन और स्ट्रॉ कलर। ठीक है, और मल्टीपल ओकेसी कब देखने को मिलता है, तो निवोइड बेसल सेल कार्सिनोमा में हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर से क्लिनिकल फीचर्स बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी तो कम है, 3 to 11% ओनली। एज
20 to 30 ईयर्स में पाया जाता है। फिर जेंडर, मेल्स ज्यादातर इफेक्ट है। साइड तो पोस्टीरियर, डेंटिजरस का कोई साइड है ही नहीं, वो तो जहाँ पे इम्पैक्टेड टूथ होगा, अनइरेक्टेड होगा, वहां पे उसके चांस ज्यादा है। ये सिस्ट एसिम्टोमेटिक होती है। एसिम्टोमेटिक होने के कारण कभी कभार हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसकी साइज बढ़ जाती है तब पेन होगा, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगा, एक्सपांशन ऑफ बोन होगा, कभी कभार ये हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अगर आप एस्पिरेशन करोगे तो आप